Hello everyone, my name is Professor Nilesh Anandwani. I am a teacher of biology subject and this is my YouTube channel Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. I always bring the videos related to the biology subject for the student of a NEET CET, NET SET, I mean to say UGC CSR NET and SET, GATE, IIT JEM and you can say PhD entrance test. All these एग्जाम्स विच इज रिलेटेड टू बायोलॉजी सब्जेक्ट आई एम ब्रिंगिंग द वीडियोस फॉर दैट. आज आप लोगों के सामने जो वीडियो में लेके आया हुआ है चैप्टर नंबर 12 दैट इज अ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई. तो आज हम इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे और मेरे आने वाले वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिकल फील्ड, biotechnology in the transgenic animal, as you can say different topic will be there from this topic, this chapter. This chapter is a small which will be you can say completed within a 5 to 6 lecture, and at the end there will be MCQ paper of this chapter. We will discuss 50 MCQ directly live through the computer screen, and you will learn lots of things from this chapter. This chapter is very valuable in the NEET examination. So let's look how the chapter is going on. First of all, I'll teach you introduction of this topic right now, and in next lecture I'll start with the applications of biotechnology in different way. In this I'll give you basics about applications of biotechnology in different way, and in another videos I will teach you in detail. Let's start. So first of all, biotechnology applications. So we know that in the last few days we have learned the chapter number 11, that was biotechnology principle and process. In that lecture, in that you can say complete chapter, we have conducted around 11 to 12 lecture, and all these lecture were related to biotechnology procedures and how basically biotechnology further goes on. हमने पिछले वीडियो में पिछले मतलब चैप्टर में हमने देखा था, ऑलमोस्ट हमने 11 से 12 लेक्चर कंडक्ट किए थे, और उस लेक्चर में हमने उन सभी लेक्चर में हमने ये देखा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी किस प्रोसेस से कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, और बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से एंजाइम्स, वेक्टर, जीन थेरेपी क्या है, वो सब चीज़ें हमने डिटेल में, जीन ट्रांसफर हमने सब डिटेल में देखा था. तो ये वाला जो चैप्टर है ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, हम कहते हैं ना नेक्स्ट सीक्वल. सो ये इसका नेक्स्ट सीक्वल है, मतलब पहले में हमने पूरे की पूरी प्रोसीजर देखी हुई थी, लेकिन इस चैप्टर में हम बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग फील्ड में उसका यूजेस देखेंगे, उनका एप्लीकेशन देखेंगे. तो ये फिलहाल इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम सिर्फ यही देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कौन कौन से ब्रांचेस से रिलेटेड है. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं. जनरली biotechnology means bio means living and technology means techniques. So simply the biotechnology means use of technology in the field of biology. It's called biotechnology. Biotechnology की definition ही ऐसी होती है. Biotechnology is a branch of a science which deals with the applications of techniques in the field of biology. This is called biotechnology. One more time I am telling you. Biotechnology is nothing but the branch of a science which deals with the applications of technology or applications of technique in the field of biology. It is called biotechnology. Biotechnology एक ऐसी नई ब्रांच है साइंस की, नई तो नहीं कहेंगे हम, काफ़ी पुरानी हो चुकी है आजकल. तो बायोटेक्नोलॉजी की ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम टेक्निक्स का बायोलॉजी फील्ड में यूज़ करते हैं, उनका एप्लीकेशंस करते हैं. इसके लिए इसको दोनों शब्दों को मिला दिया हुआ है, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी. आई होप सो आप लोगों को ये सिंपल से तरीके से समझ गया होगा. अब हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से यूज हैं. जनरली बायोटेक्नोलॉजी हैज सेवरल यूजेस इन द फील्ड ऑफ मेडिकल फील्ड. Biotechnology has several uses in the medical field. Biotechnology has several uses in agriculture. Biotechnology has several applications in management. Biotechnology has several applications in, you can say,
genetically modified organism. Biotechnology has several uses in cleaning. Actually, when we are discussing about management, so we should not discuss about cleaning, because cleaning will come under management. So there will be so many related to this. Biotechnology also have applications in genetics, and even though we can say genetics and biotechnology are correlated with each other, because in biotechnology maximum we are dealing with a DNA structure, chemistry of DNA structure, shape of DNA structure, cutting of DNA structure, joining of DNA structure, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, जीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वही सब चीजें होती है. इसके लिए जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी तो एक जैसे ही है. इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नियर अबाउट आता ही नहीं है. यस. एनर्जी प्रोडक्शन. Energy production. So biotechnology also have applications in the energy production. So I'll tell you all these things in detail. Agriculture and medical I'll tell you at the end, because these I have to explain in too much detail, because both these are too much large. Okay, so just let's discuss about this one. Biotechnology has a use in the energy production. What kind of energy? Now I'll tell you. From the living cell, we are regenerating their activation, like pancreas, which produces insulin. The technologies are going on to reactivate the pancreatic cells, like a beta cells and delta cell, and you can say alpha cell, just to restart production of insulin, glucagon, and delta, you can say somatostatin. In case if a pancreas is not working, or particular cells of pancreas is not working, so we can reactivate them, we can restart their working. This will be comes under the energy production. But what energy? Energy related to the body organ, not the electricity energy. I am not talking about that. Yes. तो जैसे पेंक्रिया एक हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जो बेसिकली हमारा शुगर मेटाबॉलिज्म करती है, हमारा ब्लड शुगर मेंटेन करती है. तो अगर पेंक्रिया के बीटा सेल इनएक्टिव हो चुके हैं, तो आजकल की जो बायोटेक्नोलॉजी है, उस बायोटेक्नोलॉजी में इनके ऊपर भी काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी को हम कैसे बेसिकली पेंक्रिया के सेल्स को एक्टिवेट करने में यूज कर सकते हैं. तो वो एक्चुअली मैं मेडिकल फील्ड में भी आपको बताऊंगा इंसुलिन के बारे में, लेकिन इट वाज द बेसिक वन. Biotechnology has a too much role in the management system. Now, what kind of management system? Management system can be several things. You can say waste management. Waste management is one of the most biggest problem over right now we have. The thing is that there is a lots of waste, biomedical waste, agriculture waste, so many kind of waste are available. बहुत अलग अलग प्रकार के जैसे बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं. बायोमेडिकल वेस्ट तो काफ़ी डेंजरस होते हैं, उनको तो इंसिनरेशन टेक्निक से डिस्पोज किया जाता है. फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है. वेस्ट जितने भी हैं वो सभी के सभी वेस्ट मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट सिस्टम में आ जाएंगे. तो बायोटेक्नोलॉजी का उसमें भी एप्लीकेशंस हैं. कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिन्हें हम बायोटेक्नोलॉजिकली रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं. ठीक है. मैनेजमेंट जनरली अगर हम देखें तो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, और अलग प्रकार के मैनेजमेंट होते हैं. सॉलिड वेस्ट में क्या होगा, लाइक ऑल द यू कैन से वेस्ट मटेरियल कमिंग फ्रॉम आवर होम, आवर हाउसेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बिग बाजार, मार्केट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो होगा सॉलिड मैनेजमेंट. और लिक्विड मतलब जो भी वेस्ट वाटर है उस सबको मैनेजमेंट करने का, वो भी तो ये सब के सब आजकल बायोटेक्नोलॉजिकली काफ़ी यूज हो रहे हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी का इन चीज़ों में भी काफ़ी अभी उनके एप्लीकेशन उभर के आ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के, कि यस बायोटेक्नोलॉजी हम ये भी कर सकते हैं. जैसे फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हमें डायरेक्टली फेंकना पड़ता था, आज हम उनको फर्मेंटेशन टेक्निक से उनसे काफ़ी सारे काम फिर से ले सकते हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी का इन ब्रांचेस में भी एप्लीकेशन है. फिर अगर हम ये देखें बायोटेक्नोलॉजी का जेनेटिक्स में, तो जेनेटिक्स में क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग. यस, आई होप सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. काफ़ी ऊपर तो नहीं लिख रहा हूँ.
ओके, तो यहाँ तक ठीक है, आपको दिख रहा है. सो बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो हैव एप्लीकेशंस इन द जेनेटिक्स, स्पेशली यू कैन से जेनेटिक इंजीनियरिंग, यू कैन से क्लोनिंग, आरडीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, ये सब ब्रांच तो हमने पिछले चैप्टर में देखी है. क्लोनिंग इज अ कंसेप्ट व्हिच मींस वी आर how we are multiplying the number of genes. Suppose we have a single segment of gene, we can make a many copies of that you can say particular gene. This is called cloning. It is also used in the gene banking. Gene banking is nowadays good option we have. So in a gene bank we are collecting the genes, we are storing the genes, and finally when we need such kind of a genes for the research field, we are using that. बायोटेक्नोलॉजी का जेनेटिक्स में इतने सारे काफी एप्लीकेशंस है. जैसे आपका हो क्लोनिंग में जीन्स की नंबर को मल्टीप्लाई करना, नंबर को बढ़ाना, कॉपी करना, ये भी बायोटेक्नोलॉजी में आता है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे ही हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं. ठीक है, जैसे डोली आपको पता होगा, डोली एक शिप थी जिसे बेसिकली दो साइंटिस्ट ने मिलके बनाया हुआ था. एक्चुअली दो अलग अलग शिप में से गैमेट ट्रांसफर, मतलब सेल ट्रांसफर करके, गैमेट हम नहीं कहेंगे, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ये तो क्लोनिंग थी, असेक्सुअल टेक्निक थी. दो अलग अलग शिप में से सेल लिए हुए थे और उनको प्रोटोप्लास्ट टेक्निक से, साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन से ज्वाइंट करके, फिर ज्वाइंट करने के बाद तीसरी शिप में सरोगेट मदर में ट्रांसफर किया था, और फिर एक शिप ने बर्थ लिया होता है जिसे हम कहते हैं डॉली. अगर हो सके तो मैं इस चैप्टर के अंदर वो भी टॉपिक कवर करवा लूंगा, ताकि आपको डॉली जो बायोटेक्नोलॉजी का सबसे सक्सेसफुल एग्जांपल है वो मैं आपको बता सकूंगा. डॉली वाज अ शिप क्लोन, एक शिप का क्लोन था. ठीक है, तो जेनेटिक्स में वो भी आता है. अब आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ. यू कैन से कोड ब्लड बैंकिंग. शायद कुछ कैंडिडेट ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा. आजकल काफी ट्रेंड चल रहा है कोड ब्लड बैंकिंग, फॉरेन कंट्री में तो काफी ज्यादा. कोड ब्लड बैंकिंग मतलब क्या होता है, मैं आपको 2 लाइन में समझा देता हूँ. इसके लिए मेरा एक स्पेसिफिक लेक्चर भी आएगा कोड ब्लड बैंकिंग के ऊपर. क्या होता है कोड ब्लड बैंकिंग? एट द टाइम ऑफ अ प्रेगनेंसी, व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट, she is transferring nutrient from her body to her baby via placental cord or you can say umbilical cord. तो जब एक प्रेग्नेंट वुमेन अपने बेबी को, अपने बच्चे को अंदर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करती है वाया प्लासेंटा और प्लासेंटल कोड, तो वो होता है प्लासेंटल कोड प्लासेंटा. अभी कोड ब्लड बैंक मतलब क्या? जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, मतलब बच्चा माँ से अलग हो जाता है, तो बच्चे का जो ये मतलब प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा को कट किया जाता है और मदर के वहाँ से प्लासेंटा को कट किया जाता है. तो बीच का जो वो हिस्सा होता है, ठीक है, उसे कोड ब्लड बैंक वाले लेके जाते हैं और उसके अंदर अम्नियोटिक सेल्स होते हैं. उसके अंदर मदर के और बेबी के दोनों के सेल्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बेबी के सेल्स और मदर के सेल दोनों के सेल से मिलके ये प्लासेंटा बनता है. तो इस प्लासेंटा में दुनिया की काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियों के मतलब आप समझ लो काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज छुपे हुए हैं इन कोड के अंदर, उस प्लासेंटा के अंदर. जनरली व्हेन अ वुमन इज डिलीवरिंग अ बेबी, so the pipe which connect mother to you can say pregnant woman to her baby called placenta, after delivery that placenta is cutted from mother as well as baby. So the placenta, the middle piece, that is carried by the cord blood banking person, and they used to preserve this cord, and they are not actually preserving this cord, they are collecting the cells from this cord. Actually this pipe is made from mother and baby's both the cell, and these cells are generally called as a stem cell. They are the beginning cell, they are the stem cell. This stem cell can help in the production of a new antibodies, production of some important component which are required by our body just to face the several problem. मैं कोड ब्लड बैंकिंग के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा. एक सिंपल सी टेक्निक, सिंपल सी लाइनिंग में समझ लीजिए. कोड ब्लड बैंक वाले इस प्लासेंटल कोड को लेके जाते हैं और उसमें से कोड में से कुछ सेल्स निकालते हैं जिनको स्टेम सेल करते हैं और स्टेम सेल कहते हैं, और स्टेम सेल को प्रिजर्व कर देते हैं बैंक में, जिसे हम कहते हैं कोड ब्लड बैंक.
प्रिजर्व करने के बाद अगर उनके पेरेंट में या तो उनको खुद बेबी को लाइफ में फ्यूचर में अगर कोई डिसीज आती, कौन कौन सी डिसीज मैं आपको कोड ब्लड बैंकिंग के लेक्चर में बताऊंगा, तो उनमें से कोई अगर डिसीज आती है तो वो डिसीज को ट्रीट करने के लिए इनके जो सेल प्रिजर्व किए गए हैं वो यूज में आते हैं। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी सारी ब्लड बैंक होती है, सॉरी कोड ब्लड बैंक होती है। इंडिया में कोड ब्लड बैंक कोलकाता में है, बाकी कुछ सिटियों में है, फॉरेन कंट्री में भी है। इसके लिए हमें पहले कुछ पैसे देने पड़ते हैं उनको, ताकि वो हमारे स्टेम सेल को प्रिजर्व करें और फ्यूचर में हमें उस चीज़ को रिटर्न दें, ताकि जब भी हमें उसकी चीज़ की ज़रूरत हो वो हमें प्रोवाइड करें। दैट इज कोड ब्लड बैंक। So cord blood bank is also related to biotechnology, directly relation with the genetics. How? Because in this we are not only collecting the cell, we are preserving these genes. Then what about GMO? GMO stand for genetically modified organism. GMO stand for genetically modified ऑर्गेनिज्म, GMO। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, नेचर ने हमें जैसा बनाया हुआ है, अगर हम इंसान हैं, अगर कोई एक स्पेसिफिक प्लांट है, तुलसी प्लांट है तो तुलसी प्लांट है, अशोका प्लांट है तो उसमें अशोका प्लांट की कैटेगरी है, मनी प्लांट है तो उसके अंदर मनी प्लांट के नेचर है। ठीक है, मतलब नेचर ने जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को जैसा बनाया हुआ है, अगर वो वैसा ही रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर हम थोड़ा भी जेनेटिक्स में, उसके खुद की डीएनए में थोड़ा भी अगर हम चेंजेस करते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे नॉर्मली पहले रेट हुआ करते थे, यस, चूहे अभी भी हैं, चूहे तो सबके घर में होते ही। तो जो रेट होते हैं, रेट में आजकल रेट के जीन्स में, रेट के डीएनए में कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं कि उनमें से एक नई स्ट्रेन, नई ब्रीड प्रोड्यूस हुई है, जिसे हम कहते हैं माइस, MIC, माइस। माइस वाइट कलर के छोटे से चूहे होते हैं जिनको एक्सपेरिमेंट करने के पर्पज से ही बनाया गया हुआ है। मतलब अगर आपको जेनेटिक्स में अगर कोई रिसर्च करना हो, प्रैक्टिकल करना हो, तो आप माइस को यूज कर सकते हो, बिकॉज माइस एंड ह्यूमन बीइंग एंड मंकी हैव अ शेयरिंग नियर बाय द सेम जीन्स। So whatever you will do experiment in mice, same experiment, same work will happen in the human being and monkey. It is supposed to be like that. तो वैक्सीन का भी ट्रायल जनरली इनके ऊपर ही किया जाता है, लेकिन GMO में काफ़ी सारे, अगर आप एनिमल को मॉडिफाइड करते हो देन यू विल कॉल इट एज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। इफ यू आर यूजिंग प्लांट, अगर आप प्लांट में कुछ चेंजेस करते हो यू विल बी कॉल्ड एज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। लाइक अ फ्लेवर सेवर टोमेटो, एक ऐसा टोमेटो है जिसकी लाइफ स्पेन बढ़ा दिया है। नॉर्मली अगर टोमेटो को हम फ्रिज के बाहर रखते हैं तो 6-7 दिन भी ज़्यादा हो गए, 3-4 दिन में ही खराब हो जाएगा, क्योंकि टोमेटो की आउटर स्किन जो होती है इपिकार, वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस, जिसके कारण टोमेटो की शेल्फ लाइफ, मतलब उसकी एक्सपायरी खत्म होती जाती है, मतलब टोमेटो खराब हो जाता है, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो साइंटिस्टों ने क्या किया हुआ है, एक नया टोमेटो प्रोड्यूस किया हुआ है। उसके नॉर्मल टोमेटो में ये एंजाइम जो है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस, इसका प्रोडक्शन का टाइमिंग जो है वो 4 to 5 टाइम डिलेट कर दिया हुआ है। मतलब अगर जो पहले पुराने टोमेटो थे वो 5 दिन में खराब हो रहे थे, तो नए वाले टोमेटो ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन तक नॉर्मली वैसे ही रहेंगे। that tomato is a flavor sour tomato and that tomato plant is a genetically modified plant, because normal plant में टोमेटो थे वो तो 5 दिन में खराब होते थे, लेकिन आपने उनके डीएनए में चेंजेस किए, इसके लिए हम इसे कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ठीक है, गोल्डन राइस भी एक ऐसा प्लांट है जिसमें नॉर्मल राइस में बीटा कैरोटीन जीन्स ऐड कर दी गई है, और इस राइस के अंदर प्रो विटामिन ए को डाल दिया हुआ है। मतलब अगर आप राइस खाते हो तो प्रो विटामिन ए भी मिलेगा आपको, जो आगे चल के विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगा हमारी बॉडी में, जैसे ही वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बाइंड होता है। तो ये कुछ होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म काफ़ी सारे हो सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, genetically modified animal, genetically modified yeast, genetically modified fungi, genetically modified bacteria, genetically modified virus। आप जिस ऑर्गेनिज्म में चेंज करोगे वो क्या हो जाएगा, वो स्पेसिफिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगा। लेकिन इनकेस अगर ह्यूमन में कुछ चेंजेस होता है तो हम क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन, GMH, जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम आते हैं हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेडिकल फील्ड।
तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस इसमें ही होते हैं, एग्रीकल्चर में और मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में तो आज इतने एप्लीकेशन है, हम गिन नहीं सकते, इतने एप्लीकेशन हो जाते हैं। बट I'll give you some examples that how medical field are getting a help from the biotechnology. Okay, so this much portion I will use for the agriculture field. So I'll go for it. Biotechnology used in the agriculture. In agriculture field, you can prepare genetically modified plant. How? By adding a genes from one plant and put into the another plant. जिस प्लांट के अंदर जीन्स की डिफिशियंसी है या तो जिस प्लांट के अंदर एक चीज की कोई कमी है, अगर वो चीज की कमी आप दूसरे प्लांट में से पूरी कर सकते हो जीन्स ट्रांसफर करके, तो आप उस प्लांट को कहोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। अब आप सोचोगे क्या सर ये तो आपने यहाँ पे पढ़ा है, ये एक्चुअली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये उनमें से सिर्फ प्लांट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। बायोटेक्नोलॉजी को आप एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते हो? यू कैन प्रिपेयर, यू कैन से पेस्ट resistant plant, you can prepare insect resistant plant, virus resistant plant, bacterial resistant plant. All this you can prepare by biotechnology. आप कैसे कर सकते हो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो एक प्लांट ऐसा है जिसको इंसेक्ट का इन्फेक्शन होता ही नहीं, और एक ऐसा प्लांट है जिसको इंसेक्ट का इन्फेक्शन इजीली हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जिस प्लांट में इंसेक्ट का इन्फेक्शन नहीं होता है, दैट प्लांट इज कंसिडर एज अ इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, नॉट अ इंसेक्ट सेंसिटिव प्लांट। लेकिन जिस प्लांट में इंसेक्ट का इन्फेक्शन होता है हम उसे कहेंगे इंसेक्ट सेंसिटिव प्लांट। सो वी हैव ओनली सिंपल मेथड, we have to collect the DNA from the insect resistant plant and select the genes which is insect resistant gene and transfer these genes into the insect sensitive plant. So after some time when the genes will replicate in the insect sensitive plant, when it will express, when it will regulate, automatically वो plant भी क्या हो जाएगा, insect resistant plant हो जाएगा। तो आप बायोटेक्नोलॉजिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग के मदद से आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। फिर वो चाहे पेस्ट रेजिस्टेंट हो, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो, वायरस रेजिस्टेंट हो, बैक्टीरियल रेजिस्टेंट हो या तो फंगल रेजिस्टेंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन गो फॉर प्लांट इम्प्रूवमेंट। आप प्लांट को इम्प्रूव भी कर सकते हो। हाउ यू कैन इम्प्रूव द प्लांट? You can improve the plant by several way. Like मैंने जैसे आपको कहा, one is a flavor saver tomato. इसकी स्पेलिंग ऐसी आती है FLAVR, flavor saver tomato. Flavor saver tomato can be prepared by the biotechnology. Even though I'll tell you simple techniques of biotechnology such as a pomato. What is pomato? Pomato is a variety which is made from tomato and plus potato. If you take a tomato and potato, means a cytoplasm and nucleus from both of them by somatic hybridization, you can directly prepare a new variety that will be called as a pomato. ऐसे ब्रिंजल में भी होता है, ठीक है। तो हम दो अलग अलग वेजिटेबल्स को कलेक्ट करके इनके डीएनए को अगर मिक्स करके बनाएं तो एक नया प्लांट भी बन सकता है, नया फ्रूट भी बन सकता है। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो में भी बेसिकली उनकी एक्सपायरी डेट बढ़ाने के लिए, एंजाइम्स की प्रोडक्शन को डिले करने के लिए टेक्निक यूज की जा रही। तो बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर फील्ड में भी काफ़ी सारे यूज है। अब हम चलते हैं मेडिकल फील्ड की तरफ। मेडिकल फील्ड यू कैन से गेटिंग टू मच ऑफ स्कोप नाउअडेज फॉर द फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी। Like you can go for gene therapy, we can go for insulin production, we can go for insulin production, yes, gene therapy, insulin production,
ट्रांसजेनिक एनिमल हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे प्लांट के लिए जरूरी था क्योंकि ये स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड है। यहाँ पे डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस, ड्रग preparation means pharmaceutical. Yes, you can say research field, molecular procedure, etc. मैं आपको बता रहा हूँ जीन थेरेपी में क्या होता है। अगर मान लो किसी बंदे को, किसी एक पर्सन को अगर कैंसर है और कैंसर उनको, अगर कोई जीन्स उनके अंदर डिफेक्टिव है तो आप उस जीन को डिलीट करके उसके अंदर नॉर्मल जीन को रिप्लेस कर सकते हो। दैट टेक्निक इज कॉल्ड जीन थेरेपी। आई विल टीच यू व्हेन आई विल कम टू द पॉइंट कॉल्ड जीन थेरेपी। मैं ये सब चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ, सब इन द सेंस ये चीज और ये दोनों हमारे सिलेबस में है, तो हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, तो ये सब चीजें उसमें आई जाएगी। दूसरा होता है इंसुलिन प्रोडक्शन। इंसुलिन इज द हार्मोन विच मेंटेन आवर ब्लड शुगर लेवल, एंड अगर इंसुलिन हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होता है तो हम डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो वो बायोटेक्नोलॉजी से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। Diagnosis of disease means finding the disease, like when we are going to any laboratory and we are giving our blood for finding what diseases we are having, that's called diagnosis. बायोटेक्नोलॉजी का आजकल डायग्नोसिस में काफी इंपॉर्टेंट क्रिएचर आ रहा है। ड्रग प्रिपरेशन मीन्स नॉट अ ड्रग मीन्स जनरली मेडिसिन। In the pharmaceutical chemist, in the pharmaceutical, you can say pharmaceutical or you can say pharmacognosy etc. फार्मेसी के जो भी ब्रांचेस हैं उनमें जब हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं ड्रग प्रिपरेशन। बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च फील्ड में भी एप्लीकेशंस है, बायोटेक्नोलॉजी का मॉलिक्यूलर प्रोसीजर में भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये काफी हुए। हेल्थ में आप ये भी देखो, वैक्सीन प्रोडक्शन, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए आजकल काफ़ी वैक्सीन्स प्रिपेयर की जा रही है और वो वैक्सीन्स इतने इंपॉर्टेंट है। जनरली बायोटेक्नोलॉजी में हम जो वैक्सीन बनाते हैं वो वैक्सीन सबसे पहले ट्रायल कहाँ करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर। स्पेशली कौन, ट्रांसजेनिक एनिमल में माइस, मंकी इनको यूज़ कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का आजकल ग्राफ्टिंग में भी यूज़ होता है। ग्राफ्टिंग मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। यस, इवन दो बायोटेक्नोलॉजी हैज़ अ यूज इन दी plant tissue culture, that's called PTC, and that will be included under the agriculture field. So these are the applications of biotechnology. In the sense अगर मैं आपको 2 घंटे भी इसके ऊपर अगर लेक्चर दूँ ना तो भी वो कम पड़ेगा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच ही ऐसी है, इतनी स्कोपेबल ब्रांच है आजकल। तो अगर हम मेडिकल फील्ड में और डिस्कस करें तो और नीचे और जितना हम ओपन करेंगे बायोटेक्नोलॉजी को इतना अंदर डीपली जाते जाएंगे। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर कॉल्ड चैप्टर 12 फ्रॉम द 12th CBSE, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पे सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारी जब भी नई वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, थैंक यू सो मच।